Hello student, how are you? I hope all of you are fine. Today we are going to start chapter number 3, weather and climate. What is weather? Every day you can read the weather forecast in the newspaper or hear it on TV or radio. It tells you what the weather will be like for next 24 hours or maybe for the next few days. बच्चों आपने सुना होगा कि हमेशा रेडियो और टेलीविज़न पे वेदर फोरकास्ट आता है। उसमें बताया जाता है कि अगले हम 24 घंटे तक जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का तापमान और जगह का तापमान कैसा रहेगा। सो वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो वेदर क्या होता है? एक एटमॉस्फेयर होता है एक पर्टिकुलर प्लेस का, एक पर्टिकुलर टाइम का जो एटमॉस्फेयर है उसी को हम वेदर कहते हैं। इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन द एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, wind speed and direction, amount of rain or snowfall and conduction of the sky. So what information it gives us? It gives us the information about the air temperature, air pressure, humidity, wind speed and direction, amount of rain or snowfall and condition of the sky. These information you get from the weather. The weather may change within a very short time. For example, it may be dry or sunny on one day and cloudy and rainy the very next day. Even on the same day, if may rain for a few hours and then become sunny again. So अब बच्चों आप देखते हो कि जो मौसम होता है वो एक दिन में बहुत बार चेंज होता रहता है। जो वेदर होता है वो चेंज होता रहता है। इट्स कीप ऑन चेंजिंग. Sometimes for few hours it may be sunny, for few hours it may be cloudy, for few hours it may be rainy again. So these this type of the weather always keep on changing. It is not same for sometimes it is for a long time कि सुबह से लेकर शाम तक गर्मी है, but it may be change for next few hours. Even on the same day, it may rain for a few hours and then become sunny again also. Weather relate to a small area. For example, there may be bright sunshine in your town while it is raining heavily in another town for a few kilometers away. तो जो weather होता है बेटा वो कुछ किलोमीटर तक सेम बना रहता है, तो उसके बाद वो चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी आप जब स्कूल आते हो, आपके स्कूल में क्या होता है, रेन हो रही होती है, और जब आप घर जाते हो, फिरोजाबाद है या आगरा है, जो बच्चे वहां से आते हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं हुई है। सो ये जो वेदर है तो ये सेम नहीं रहता है, हर जगह का टेम्परेचर अलग होता है, हर सिटी का टेम्परेचर अलग होता चला जाता है। कुछ किलोमीटर बाद ये जो वेदर है बदलता रहता है। How weather affect us? So weather influence our daily lives. For example, you take raincoat to school on a rainy day. On a foggy day, you expect trains to run late, and if there is a storm warming, fishermen do not go out to sea and fight. Things may be changed. Information about the weather is very useful. It enables us to take precaution against the bad weather. So weather effect in our daily life very in every field of our life. Sometimes you have rain, so you use raincoat and umbrella. And foggy days, when you have foggy days, the weather is very foggy, then you can see the trains runs very late, and you also drive your vehicle very slowly. And if there is a storm, so fishermen are not allowed to go near the sea or not go in the sea, because it maybe the weather may be changed
and high tide will come and their lives will be in danger. So information of the weather is very useful because to see the danger of the weather, government broadcasts the weather report in advance so that the fishermen and all the people take precaution. It enables us to take precaution against the bad weather. So what is climate? Climate is the average weather or a regular pattern of weather condition at a place over a long period. So बच्चों आपको अभी बताया कि जो वेदर होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है. जो रेगुलर पैटर्न होता है वेदर का वो वहां की कंडीशंस के ऊपर निर्भर होता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस for a long time. So the climate depends on it. Usually the climate of a place is described on a basis of the weather information collected at the place over a period of 30 or 35 years. कभी कभी तो जो ये क्लाइमेट होता है ये इतना लंबा होता है कि 30 और 35 साल तक एक जगह पर एक जैसा बना रहता है. सपोज आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, आप देखते हैं कि वहां पे क्या होता है, कोल्ड वेदर होता है, बहुत ठंड होती है वहां पर. आप इधर राजस्थान में जाएंगे इन हॉट रीजन्स, सो यू फाइंड दैट देयर इज वेरी वार्म वेदर इज देयर. वहां पे बहुत गर्मी होती है. तो ये कोई अब से नहीं चला आ रहा है, ये बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत सालों से चला आ रहा है. सो द क्लाइमेट ऑलवेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट डिस्क्राइब द वेदर कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. Climate changes are very slow. So climate remains more or less unchanged over. So climate जो है, जो climate में जो changes होते हैं very slow, बहुत slow होते हैं climate में change. वो climate जो है वो एक जगह बहुत लंबे टाइम तक रह सकता है. Long periods of time. For example, in India, it is hot and wet in June every year. Climate relates to fairly large areas. Geographers have divided the world into the few large zones, each with a particular type of climate. Such zones are called climate zones. So, for example, India में जैसे hot और wet वेदर होता है, क्लाइमेट होता है एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ द जून. सो क्लाइमेट रिलेट्स टू फेयरली चेंज लार्ज एरिया. सो मोस्ट ऑफ आवर ज्योग्राफर्स, जो भौगोलिक लोग हैं, साइंटिस्ट है, ज्योग्राफी के साइंटिस्ट है, वो उन्होंने पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को कुछ जोन्स में डिवाइड किया है वहां के पर्टिकुलर क्लाइमेट के देखते हुए. सो सच जोन्स आर कॉल्ड क्लाइमेट जोन्स. हाउ क्लाइमेट इफेक्ट अस? क्लाइमेट इफेक्ट आवर लाइव्स इन वेरियस वेज. फॉर एग्जांपल, इट डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ वेदर, what kind of clothes we wear. In region closer to the poles, people wear heavy woolen clothes to keep themselves warm. So climate affect our daily lives in various ways. For example, when we have when we have winter season, we wear woolen clothes, we wear heavy clothes. So in region closer to the poles, the region those who are closer to the poles, they are having a warm climate. So that's why people are wearing heavy woolen clothes to keep themselves warm. So in a tropical region, people wear light, loose clothes to keep themselves cool. So इसके उल्टा क्या होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, they wear light, loose cotton clothes to keep themselves, because cotton keep you cool na. So that's why they use cotton clothes. In region
Having a distinct summer and winter season, there is a seasonal change in dressing styles. So according to the climate, so summer and winter season, we use a different dressing style and different types of clothes which we wear. You can guess why South Asian are mainly rice eater and European are mainly wheat eaters. अब हम आप सोच सकते हो कि एशियंस जो है मेनली वो राइस ईटर क्यों होते हैं और यूरोपियन जो है वो व्हीट ईटर क्यों होते हैं. बिकॉज it is because the hot and wet climate of South Asia favor the rice cultivation. क्योंकि जो साउथ एशिया का जो कल्टीवेशन है वो हॉट है, वेट है, क्लाइमेट वहां का हॉट है, वेट है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, तो वो व्हीट ज्यादा उगाते हैं, सॉरी वो राइस ज्यादा उगाते हैं. एंड द कूलर ड्रायर क्लाइमेट ऑफ यूरोप फेवर व्हीट कल्टीवेशन. और जहाँ पे ठंड है और ड्रायर प्लेस है, बहुत ड्राई है क्लाइमेट, तो वहां के लोग क्या उगाते हैं, वहां के लोग व्हीट ज्यादा उगाते हैं. सो इसीलिए जो एशियंस हैं वो राइस ईटर होते हैं और जो साउथ एशिया के लोग राइस ज्यादा खाते हैं और यूरोपियंस जो है वो व्हीट ज्यादा खाते हैं. Thus climate determines what crops we grow and what we eat. इसीलिए क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंड होता है what types of crops we have to grow in our field and what we have to eat. What we are cultivation, that only we have to eat. So this is only depend on our climate. Sometimes climate influence the designs of our houses. In wet और स्नोई रीजन हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स. सो क्लाइमेट के ऊपर ही बच्चों डिपेंड करता है हमारा हाउसेज का डिजाइन, कि हमारे घर या हमारे जो होम्स होते हैं, मकान होते हैं, हम वो किस तरह से डिजाइन करेंगे, कैसे बनवाएंगे. जो आपने देखा होगा जब पहाड़ों में जाते हैं तो वहां पर जो होते हैं घर होते हैं वो स्लोपिंग रूफ्स वाले होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे बर्फ पड़ती है, बर्फ आपकी छतों पे जम ना जाए, तो वहां पे स्लोपिंग रूफ्स होती है कि बर्फ पिघल कर नीचे गिर जाए, फिसल के नीचे गिर जाए. टू प्रिवेंट रेन वाटर और स्नो फ्रॉम कलेक्टिंग ऑन द रूफ टॉप. और इसीलिए उनकी जो स्लोपिंग रूफ होती है ताकि वो जो बारिश का पानी है, स्नो जो है, वो वहां पर जमा ना हो, वो नीचे गिर जाए आसानी से, इसीलिए स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है. क्लाइमेट ऑल्सो डिटरमाइन द काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वी सी अराउंड अस. For example, we are likely to see palm trees and mango trees in warm places, pine and fir trees in cold places, and cacti in hot deserts. And we usually see elephant in warm places, polar bear in the cold Arctic region, and camels in deserts. So climate also determine the kinds of plant, kinds of animals, kinds of tree. It determine the places. So in the cold region you can see the polar bear and palm and mango trees in warm places, pine and fir trees in cold places, cacti in the deserted area, because it is a hot region. And we usually see elephant in warm places, polar bear in Arctic region, and camels in desert. So climate always determine the plants, animals, and trees that we have to have in that climate in a particular place. Weather element and their observation. The various elements of weather like temperature, pressure, rainfall, etc. are observed and measured with the help of different instruments. Let us learn how it is done. So weather का जो the
वेरियस एलिमेंट ऑफ वेदर लाइक टेम्परेचर है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, रेनफॉल है, इन सबको नापने के लिए हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बच्चों। सो वो एक इंस्ट्रूमेंट से नहीं नापे जाते, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर इज अ मेजर टू हाउ हॉट और कोल्ड इज द एयर। जो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि हमें एक जगह का टेम्परेचर नापना होता है कि वहाँ जिस जगह पे हम रह रहे वो जगह का टेम्परेचर कितना है, वो कम है, ज्यादा है, हॉट है या ड्राई है या कोल्ड है। सो इट इज टेम्परेचर इज मेजर विद द हेल्प ऑफ द थर्मामीटर। अब वो हम किससे नापते हैं? थर्मामीटर की मदद से। यू कैन सी इन दिस पिक्चर it is a thermometer, and a thermometer observe the maximum and the minimum temperature. This thermometer can read at minus 40 degree both of the Celsius, Fahrenheit and reading are equal. So ये थर्मामीटर की हेल्प से हम वहाँ का टेम्परेचर लेते हैं जिस जगह का भी हमें नापना होता है कि वहाँ पे वो हॉट रीजन हॉट क्लाइमेट है या कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पर। सो विद द हेल्प ऑफ द थर्मामीटर we measure the temperature. A thermometer is generally a narrow glass tube filled with a liquid. थर्मामीटर क्या होता है? एक पतली सी ट्यूब होती है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं बेटा, पतली सी ट्यूब होती है, उसमें मरकरी लगी रहती है। वो मरकरी ही हमको एक लिक्विड उसमें फिल्ड होता है और उस लिक्विड में जो एक मरकरी लगी रहती है वो ही हमें बताती है कि टेम्परेचर कितना है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लिक्विड आर मरकरी एंड एल्कोहल। जो उसमें थर्मामीटर में वो जो लिक्विड यूज हो रहा है वो मरकरी और एल्कोहल होता है। सो दीज लिक्विड एक्सपेंड मच मोर देन ग्लास व्हेन द टेम्परेचर rises and control much more than glass when the temperature fall. तो जैसे गर्मी होती है तो ये जो मरकरी होती है बीच में ये रेज होती है, अप होती है, और जितनी ठंड होती है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, उसमें ये क्या होता है? डाउन होती है ये मरकरी। Hence they raise and fall in the temperature tube according to the rise and fall in air temperature. So जितना भी टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से, अगर टेम्परेचर हाई है तो ये मरकरी अप होगी, और जितना भी टेम्परेचर डाउन होगा तो ये जो ग्लास ट्यूब बनी हुई है थर्मामीटर की उसमें मरकरी जो है वो डाउन होती जाएगी। The glass tube is graduated mark at regular intervals so that the level of the liquid can be measured. तो उसमें मार्क बने रहते हैं इस थर्मामीटर में, उसमें लिखा रहता है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, तो उसमें लिखा रहता है, नंबर्स डले रहते हैं। तो वो जो राइज करता है मरकरी, उस जहाँ पे जाके वो रुक जाता है तो वहीं पे जाके पता चल जाता है कि यहाँ का मतलब कितना टेम्परेचर है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है या 20 डिग्री है, माइनस में है या प्लस में है। तो इससे हमें वहाँ का टेम्परेचर पता चलता है उस जगह का। The freezing and the boiling points of water are taken as the reference point of graduating the tube. तो किसी हम ठंडे पानी को या गर्म पानी को भी हम इस थर्मामीटर के थ्रू नाप सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। The two most commonly used scale for the measurement of temperature are the Celsius and the Fahrenheit scales. So इस थर्मामीटर में दो स्केल होते हैं नापने के, एक सेल्सियस, one is Celsius and other one is Fahrenheit. So these two scales we are using to measure the temperature. The scale have been named after the two scientists who invented them. तो ये जो नाम रखे गए हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ये जो इन्वेंट किया था टेम्परेचर थर्मामीटर, उन लोगों के नाम के अकॉर्डिंग ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर नापने के लिए स्केल को दिया गया है।
The unit on the two scales are written as 0 डिग्री सेल्सियस एंड 0 Fahrenheit respectively. तो हम पूरा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस नहीं लिखते हैं. सो 0 और उसको C कैपिटल में लिख के इट डिस्क्राइब सेल्सियस एंड 0 डिग्री capital F we are use as a scale of Fahrenheit. So the scale, the Celsius scale is also called the centigrade scale. Celsius scale को हम centigrade scale भी बोल सकते हैं. On this scale, the freezing point of water is taken as 0 degree. जो freezing point होता है पानी का सबसे ठंडा जो पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है. while its boiling point is taken as 100 डिग्री सेल्सियस. और जो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है पानी का वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है. ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री सेल्सियस while its boiling point is 212 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो ज्यादा हम 32 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं और वो पॉइंट आउट करता है. और जबकि गर्म पानी का जो स्केल है वो 212 मतलब 212 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम जा सकता है. इन आवर कंट्री लाइक इन मोस्ट अदर एयर टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन द सेल्सियस स्केल. सो हमारी जो कंट्री में हमारी इंडिया में जो भी रिकॉर्ड होता है टेम्परेचर always it is recorded in a Celsius scale. The air temperature at any place changes through the day. A special type of thermometer is used to measure the maximum and the minimum temperature during a day. जो हमारा air temperature है it always changes. आपको बताया था मैंने अभी पहले कि जो वेदर है ना वो चेंज होता रहता है. तो एक जगह एक जैसा वेदर नहीं होता, वो कुछ किलोमीटर जाके चेंज होता रहता है. सो एवरी डे इट इज चेंजिंग. जो टेम्परेचर होता है हमारा एटमॉस्फेयर का वो एवरी डे इट विल चेंज. आपने देखा होगा वेदर फोरकास्ट में भी आज कितना टेम्परेचर रहा. अरे आज तो बहुत गर्मी थी, 40 डिग्री सेल्सियस रहा. आज तो 22 रहा. हम जब सर्दी होती है हम बोलते हैं. सो a special type of thermometer used to measure the maximum and the minimum temperature during a day. तो हम एक स्पेशल टाइप का थर्मामीटर यूज करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर पूरे दिन का लेने के लिए. इट इज कॉल्ड 6S मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर. और उस स्पेशल थर्मामीटर को हम क्या नाम देते हैं? 6S मिनिमम एंड मैक्सिमम thermometer. So after its inventor, the thermometer is a U-shaped tube with a separate indicator in each limb. तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा जो हमारा पहले वाला टेम्परेचर है जो पिक्चर में दिखा है उससे थोड़ा सा अलग होता है बेटा. ये यू शेप में बना होता है और इसकी जो रीडिंग्स होती है वो सेपरेट लिखी रहती है. मतलब उसी टेम्परेचर में नहीं लिखे थे, सेपरेट लिखी रहती है. So this thermometer is U-shaped tube with a separate indicator marker in each limb. One indicator shows the maximum temperature and the other one shows the minimum temperature. जो एक indicator है वो maximum temperature show करता है and the other one shows the minimum temperature. The mercury in the tube pushes the indicator upward till the maximum or minimum temperature is reached. और जो थर्मामीटर में मरकरी लगा रहता है वो रेज होती रहती है और डाउन होती रहती है अगर जैसा भी टेम्परेचर होता है मिनिमम और मैक्सिमम. जो मैक्सिमम होता है तो रेज करती है, मिनिमम होता है तो वो डाउन आती है मरकरी. द मरकरी इन द ट्यूब pushes the indicator upward till the maximum or minimum temperature is reached. See figure 3.5. 3.5 फिगर में आप अभी हम आपको दिखाएंगे. When the mercury columns falls, the indicator stay
in place. So thus the maximum and minimum temperature can be read later from the position of the indicators. जहाँ पे ये मरकरी जाके रुक जाती है, रेज होके रुक जाती है, तो फिर हम थोड़ी देर बाद देख लेते हैं कि वो किस पॉइंट पे रुकी है, किस टेम्परेचर पे रुकी है, 40 पे रुकी है, 50 पे रुकी है, 60 पे रुकी है, 70 पे, तो दैट इज मैक्सिमम। और फिर उसका मिनिमम लेना चाहते हैं तो फिर उसको हम बिल्कुल नीचे देखते हैं कि वो नीचे कितने पे डाउन हुई है, 20 पर, 30 पर। सो दिस इज मिनिमम एंड द मैक्सिमम position of the indicator. That's all in this video, beta, and we will discuss the remaining portion of the lesson in next video. Thank you.